नमस्ते मनोज जी, वेलकम बैक। Namaskar, कौन सा Pankaj राग लाए हैं ji, आज? and welcome to all the viewers from all over the world. So, today we are going to be talking about a semi classical rag after a long time. I think the last we talked about was Mand, मेरे ख्याल से कि हम्म। जो semi classical राग था. उसके बाद we are talking about a semi classical rag after a long time. Normally we talk about pure classical rags and their usage in semi classical slash light music. But today we are actually going to talk about a rag which by itself is semi classical. And the amazing part is when we were researching about this rag, we found that there are so many very popular songs actually based on this rag. हम्म। So it was very interesting that. Uh, so normally this is such a rag whose name is probably not very popular, हम्म। but the songs are very popular. तो ऐसे हम्म। हमने पहले भी कुछ राग किए हैं. राइट। तो उन्हीं में से एक ऐसा राग है, राग तिलंग. तिलंग, यस Yes, यस यस। yes. जी। So Rag Tilang is what we're going to talk about today. हम्म। Uh, so Rag Tilang belongs to Khamaj Thaat, यानी कि वो पैदा हुआ है खमाज थाट से. हम्म। और इसमें the seventh note ni has both its variants. Excuse me. So it has both its variants, कोमल नी and शुद्ध नी. So जब भी किसी राग में एक ही स्वर के दोनों प्रकार जब होते हैं तो जो शुद्ध प्रकार है वो आरोह में लगता है और कोमल जो है वो अवरोह में लगता है. So that is what is the case in this rag also, that in the aroha, that is while going up, we have the seventh note ni as shuddha, meaning the natural note ni, and while coming down in the avroha, we have ni komal, which is the flatter version of ni. Does it have any specific time of day? Yeah, so technically it is sung early night, but because it is a semi-classical rag, you can sing it any time of the day. So normally ये जो इस तरह के राग होते हैं सेमी क्लासिकल, इनका समय जब हम कहते हैं तो नॉर्मली किसी भी समय इस तरह से हम इनका वर्णन करते हैं. तो वैसे इन सभी का समय बताया गया है ग्रंथों में. बट या सो एंड इसका जो वादी स्वर वो है ग, मुख्य जो मेन स्वर है. संवादी है नी, निषाद, meaning the third swar ga is the vadi swar and the seventh swar ni is the samvadi swar. And jati, it is a pentatonic scale, very similar to what we did last week. Last week we did Durga, which is also a pentatonic rag, and this is also a pentatonic scale rag, यानी कि इसमें 5 स्वर लगते हैं. While going up and while coming down, the two swars that are absent are re and dha, meaning the second note re and the sixth note dha are absent. Interestingly though, जो रे स्वर है उसका जो यूसेज है वो फिर भी इस राग में किया जाता है. तो ऐसा कोई स्वर अगर किसी राग में लगता हो कि जो ओरिजिनली उस राग में नहीं है मगर फिर भी उसको लगाया जाता है बीच बीच में, ऐसे स्वर को विवादी स्वर कहते हैं. ओह वाह. हाँ हाँ, कंट्रोवर्शियल. हाँ हाँ, वेल आई मीन या, सो कंट्रोवर्शियल नॉट in the true sense, but in some gharanas they tend to take re, in some styles they don't. So Okay. so winning, if somebody takes re, it is fine. If somebody doesn't take re, that's also fine. So there is no controversy from that sense. Okay. So, I thought why don't we just call him then Mishra Tilang? Why Vivadi Tilang? oh नहीं, so मतलब तिलंग राग को मिश्र तिलंग ही बोलते हैं actually. Okay. Because when you are actually singing tilang,
Mhm. You may even end up using the sixth note dha, which is actually not there in this rag, Oh, okay. which is what is the case with all the semi-classical rags, right? तो Right. और उसी की वजह से हम उन रागों को मिश्र के Right. नाम से पहचानते हैं, मिश्र खमाज, Yeah. मिश्र भैरवी, हाँ. है या ना? मजाक में जैसे कहते हैं मिश्रा जी. मिश्रा जी, अरे एकदम मैं भी वही कहने वाला था कि अगर किसी दोस्त से पूछे कि भाई ये इस गाने का राग क्या है, तो उसको अगर उस राग का नाम पता नहीं हो तो बोलते हैं अरे नहीं यार ये मिश्रा जी हैं. मिश्रा जी है मतलब ये मिक्स खिचड़ी. खिचड़ी मिश्रा जी जी. Okay. तो ये yeah, so the usage of re is very interesting, as we will see when we sing the swars of Tilang. Mhm. But let's just talk about the Aroha and Avroha, Sure. which goes like this. Sa ga ma pa ni sa. So ni ये शुद्ध नहीं हुआ, natural note, and then sa ni ये कोमल नहीं हुआ. Sa ni pa ma ga sa, वाह. है ना? जी. तो सा ग म प नी सा नी प म ग सा. जी. तो ये तिलंग. तो अभी इसमें जो रे की मैं बात कर रहा था, तो इसमें सा, तो अभी इसका जो मेन जो फ्रेज है तिलंग राग की, जैसे हमने कहा कि जो तीसरा स्वर है ग, वो इसका मेन स्वर है, मुख्य स्वर है, वादी स्वर. तो ग म प नि सा नी प ग म ग, इतना गाएंगे तो तिलंग क्लियर. तो ये टिपिकल मतलब परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल कि भाई कम से कम स्वरों में कोई राग बताइए. तो तिलंग राग कैसे बताएंगे आप? ग म प नि सा नी प ग म ग. देखिए ग पे आके वो रुक जाता है. इस तरह से ग इसका मेन नोट है. जी. तो इसी तरह से जब हम तिलंग राग पर आधारित गाने सुनेंगे तब हम नोटिस करेंगे कि ये फ्रेज जो है ये उन गानों में आपको नजर आएगी. तो अभी रे का जो यूसेज है, सो गम पनी सा, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पनी सा ग म ग सा नी प ग म पनी सा नी प ग म ग. नाउ ग म पनी सा रे सा पनी सा रे नी सा नी प, ऐसे हल्का सा रे का टच बीच बीच में लिया जाता है, जिसकी वजह से इसको विवादी स्वर कहा जाता है. सो पनी सा ग सा पनी सा रे सा नी प सा नी प मनी प ग म ग. तो ये तिलंग का मतलब कि चलन जिसको हम कहते हैं. तो अभी चूंकि ये सेमी क्लासिकल राग है, नॉर्मली व्हाट वी डू इज, if it is a pure classical rag, we first present the classical form of that rag, in which I present a chota khayal. But this rag by itself, because it is a semi-classical rag, so I'll just do like a short composition, जैसे ठुमरी जिसको बोलते हैं, and then we will go on to songs in this rag. So जैसे एक ठुमरी है जो मैंने सीखी थी हमारे गुरु से, तो वो तो ऐसी है, वो ले चलो गोकुल गाम. देखिए स्वर देखिए इसके, गम पनी सा नी प ग म ग.
ले चलो गोकुल गाम कन्हैया ले चलो गोकुल गाम बिंद्रावन में कुंज गलिन में बिंद्रावन में कुंज गलिन में कित गइयो मोरा श्याम ले चलो गोकुल गाम कन्हैया ले चलो गोकुल गाम। अभी इसमें वाह, ये ठुमरी है तो इसमें गाते समय ले चलो गोकुल गाम, अभी मैंने 6th नोट जो है वो ध लगाया इसमें, बिकॉज इट इज अ सेमी क्लासिकल राग मिश्र है ना। ले चलो नी ध म पद प, थोड़ी सी इसमें खमाज की छाया आपको दिखती है क्योंकि ये खमाज थाट पर आधारित है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि इसमें खमाज की छाया हमको दिखेगी। सो ले चलो गोकुल गाम, ले चलो गोकुल गाम कन्हैया ले चलो गोकुल गाम। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, तीसरा नोट जो है ग, उसको मैंने कोमल गा दिया, तो गम नि प गम ग रे नि सा रे ग, तो थोड़ा सा यहाँ पे काफी का भास होता है। तो इस तरह से हम इन रागों में मिश्रण हम लोग कर सकते हैं बाकी के रागों का। जब हम ठुमरी गाते हैं तो ले चलो गोकुल गाम कन्हैया, and the skill is to come back to the original rag, right? कन्हैया ले चलो ले चलो ले चलो गोकुल गाम कन्हैया ले चलो गोकुल गाम कन्हैया ले चलो गोकुल गाम। वाह जी। तो ये पूरा तिलंग का फ्लेवर इसमें। जी। अच्छा, so now keeping this in mind, I'm going to request Pankaj ji to start today's proceedings Oh with my songs. Okay, certainly. Okay. क्योंकि वो जो गाना अभी वो पेश करने वाले हैं शर्मिली मूवी का, अरे बाप, वो इतना तिलंग पर बेस्ड है कि अभी जैसे मैंने गाया तो अभी पंकज जी अभी ये लाइन मैं गाऊंगा जी इस ठुमरी की और आप फिर तुरंत वो गाना शुरू कर दीजिए ताकि लोगों को Okay, उसका वो एसोसिएशन देखिए। ले चलो गोकुल गाम जी। कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए, देखिए यूं शर्माई किस्मत हमसे, खुद से हम शर्माए। तुम क्या जानो चाहा था क्या लेकर आए हम, टूटे सपने
घायल नग में कुछ शोले कुछ शबनम, इतना सब है पाया हमने, कहो तो कहा न जाए, कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। ले चलो गोकुल गाम। वाह आहा, वाह गम प सा नि प, गम प सा नि प, गम म नि प म ग। wow, what an honor for me to match your greatness. नहीं 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 नहीं, अरे आप कि, कितने बढ़िया से आप उसको एक्सप्रेस करके गा रहे हैं, वाह। Thank you, sir. Thank you. और एक और गाना फिल्म महबूब की मेहंदी का, Sure, okay. जो कि किशोर दा का गाया हुआ है, हाँ, दोनों किशोर कुमार। तो और किशोर वो कुमार के भी सारे गाने मनोज जी ने मुझे सौंप दिए, तो such a great honor to me. तो But I इस try my best. तो इसमें भी जो शुरू की लाइन है, गम पनी सारे सा सा, पनी प म प ग, ग ग म ध प प। जी मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, आहा, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई, तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं। थैंक यू सर। आहा, क्या बात है, देखिए, जी वाह 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 वाह। तो वैसे ऑफ कोर्स एज वी कीप reiterating this again and again कि in a song it the rag need not be purely adhered to, right, meaning उस पे पूरी तरीके से आधारित होना चाहिए गाना, ये जरूरी नहीं है। जैसे अभी इस राग में भी अभी ये अंतरा जो आपने गाया, मैं ये समझा, अभी इसमें ध आ गया 6th नोट, जो कि तिलंग में वैसे तो आपसे एब्सेंट है, मगर एक तो ये वैसे भी सेमी क्लासिकल राग है तिलंग, एंड प्लस इवन प्योर क्लासिकल रागों पे भी जो गाने आधारित होते हैं उनमें भी एक आध इस तरह के स्वर आ जाते हैं जब हम उनको लाइट म्यूजिक में गाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है इस तरह से उसको करना। द थिंग इज द फर्स्ट couple of lines of any song, if they are distinctly based on a particular rag, that is when we say that this song is based on that rag, right? अच्छा, right. हाँ, so उसके वजह से जो स्थाई है, जो गाने का मुखड़ा जिसको बोलते हैं, तो मुखड़ा अगर किसी राग पर आधारित है तो फिर जनरली ऐसे कहा जाता है कि ये गाना जो है वो इस राग पर आधारित है। हाँ, मुझे अब एक दो बातें और ऐड करनी फुटनोट्स के तौर पे। तो बड़े ही मतलब ये शायद मुझे लगता है ना सिर्फ भारतीय इतिहास में लेकिन पूरे विश्व के इतिहास में सिर्फ दो ऐसे थे पिता और पुत्र जो आपस में प्रतियोगिता कर रहे थे जी। तो एस डी बर्मन और आर डी बर्मन, शर्मिली फिल्म का गाना जो आपने मुझे कहा पहले गाने के लिए, वो एस डी बर्मन का संगीत था, उसमें आर डी बर्मन आ चुके थे मैदान में जी, लेकिन पिता पुत्र की प्रतियोगिता चल रही थी जी, तो शर्मिली में पिताजी भी दे रहे हैं संगीत और उधर आर डी बर्मन शायद कटी पतंग, आराधना और कटी पतंग, और आर डी बर्मन की दूसरी फिल्म में भी आ चुकी थी, तो बहुत बड़े ये एक कटी पतंग, एक्चुअली कटी पतंग में क्योंकि आराधना उनके पिताजी की ही थी, आराधना पिताजी की थी, राइट जी, पिताजी की ऑफिशियली थी, बट आई थिंक हाँ, पर यहाँ पे शर्मिली में एस डी बर्मन साहब ने ये जबरदस्त तिलंग पे गाना बनाया और मनोज जी ने कहा कि ऑथेंटिक तिलंग है ये, मनोज जी की
हमको समझ है, हम बताते हैं, लेकिन महबूब की मेहंदी का तो गाना कहीं भी लिस्टेड नहीं है कि तिलंग ये मनोज जी का ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन जैसा है, मनोज जी की खोज है, रादर आई कैन से, वी कैन से दैट, या। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत था जी उसमें, जी। महबूब की मेहंदी में, जबरदस्त। और जी। उसी मूवी का कौन सा एक और गाना, ओ या निसा नी प म ग ग पनी म पनी निसा, इतना तो याद है मुझे, हो इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि तुमसे मुलाकात हुई, वाह, बाद में जाने क्या हुआ, हो बाद में जाने क्या हुआ, हो बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या बात हुई, इतना तो याद है मुझे, निसा नी प म ग ग। देखिए पूरा ग पे आके ठह जाते हैं ये सारे गाने, विच इज लाइक आई सेड अ प्योर मनोज एक स्टैंजा भी हो जाए, इंडिकेशन इतना ऑफ तिलंग। इसका जी, स्टैंजा भी हो जाए प्लीज। इतना स्टैंजा शानदार। आपको अगर आता हो तो, क्योंकि मुझे नहीं आता। वादे क्या ला बात है। ला 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 ला। कांगे कांगे कांगे, हाँ मिल गया ओके। जी 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 जी। वादे वफा के करके कसमें लौटा के, किसी पे दिल लौटा के चला आया, नजरें मिला के नींद अपनी गंवा के, कसक दिल में बसा के चला आया, दिन तो गुजर जाएगा, ओ दिन तो गुजर जाएगा, हाय दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई। क्या बात है। इतना तो याद है। We all grew up listening only these songs. All जी we जी had was जी these songs. जी। Yes, yes. Thank you for reminding all these great वाह। songs. जी जी और अभी फिर लता जी के एक दो गाने हैं, जी जी जी। ये मैं नशे में हूँ नाम की एक मूवी हाँ आई थी, हाँ तो उसमें सागम पनी सा सनी नी नी सा नी प मगरे रे गम प प प, वाह सजन संग का है नेहा लगा, वाह वाह नेहा लगा वाह कि हम पछताए और जहां मुस्कुरा, वाह जहां मुस्कुरा, वाह वाह सजन संग का है नेहा लगा। क्या बात, क्या वाह, तिलंग। एक एक लाइन में आपने क्या उस कितना लता जी के गाने को, क्या बात, जबरदस्त अब ये जी देख कबीरा रोया, ये गाना एक्चुअली जी। वाज अ रेवलेशन, मतलब मुझे पता नहीं था कि ओ, देख कबीरा रोया में ऐसा कोई गाना है। हम लोग ओ, नॉर्मली कौन आया मेरे मन के द्वारे, या हाँ राइट, कौन सा वाला वो दूसरा मेरी बीना तुम बिन रोए वगैरह हम लोग हाँ सुनते थे, करेक्ट। बट ये दिस वाज अ रियल रेवलेशन कि ऐसा कोई गाना है उसमें, मदन मोहन साहब का। तो उसमें सो ये जो, हाँ, तो उसमें जैसे तिलंग के हम अलग अलग मूड्स दिखाने की जो कोशिश करते हैं, तो उसमें जैसे कैसे कहें हम जो आपने गाया, उसमें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था, है ना, जैसे एक एंग्विश था उस गाने में, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, तो उसमें एक कि भाई एक क्या कहते हैं उसको, एक वो बात बताने की कोशिश करते, लाइक देयर वाज लाइक एन असर्टिव नेचर कि भाई
मेरे दीवानीपन की भी दवा नहीं, है ना। तो उस तरह का उसमें भाव था। एंड देन वी हर्ड दिस वन, इतना तो याद है मुझे। तो उसमें इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया शायद, है ना। तो वो मूड था। अब जैसे ये जो गाना था, सजन संग काहे नेहा लगाए, यानी कि जो सजन हैं वो हमसे नेहा लगा के चले गए, है ना, कि जिससे हम पछताएं और जहां मुस्कुराए। अभी ये जो है गाना, वो बलमा से लगन लगने के बाद जो भाव मन में उमड़ते हैं, उसका इसमें वर्णन है। तो लगन तो से लागी बलमा, लगन तो से लागी बलमा, धरे दिल पे हाथ तारों के साथ, सारी रैन जागे बलमा, लगन तो से लागी बलमा, लगन तो से लागी बलमा, गम पनी नी 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 सा नी सा 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 नी रे सा नी प ग म प सा नी रे सा नी प ध प म ग रे नी सा ग प म प ग प म ग रे नी सा। तो ये पूरा व्हाट एनर्जी कैसे बनाया, और उसने उसको आपने सरगम में क्या कर दिया। माय गॉड, वेरी नाइस। तो ये देख कर बिरा रोया जी। और वो जो आता लगन, वो बहुत इनोवेटिव लगता है, वो बहुत सुनने में एकदम राइट डिफरेंट लगता है। तो अभी ये रफी साहब के दो जो जबरदस्त जो गाने हैं, जी, एकदम हिट, है ना। जी। तो एक तो दीदार मूवी का जो गाना है, यस, नौशाद साहब का संगीत था जिसमें, सुन मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे मेरी कहानी। अब ये जो लाइन है देखिए, पनी नी पम मनी पम ग, ये पूरा टिपिकल तिलंग का जो इसमें फील है। तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी बर्बाद रहे मेरी कहानी। यानी कि श्रृंगार रस। So basically Tilang is a rag which normally expresses a lot of like joy and liveliness. But even in this rag, with the same swars, you can have these kind of emotions also expressed, right? Like a feeling of anguish, sorrow, frustration. And this is the greatness of our music कि वही स्वर जिनमें खुशी भी व्यक्त हो सकती है, उन्हीं स्वरों में दुख भी जाया हो सकता है, यानी कि जाहिर किया जा सकता है, जाहिर हो सकता है। हाँ, हाँ। ये तो एक्सट्रीम एग्जांपल था दुख का, तो जो दिलीप कुमार साहब की फिल्म थी संगीत, जी जी, दीदार फिल्म, दीदार। और दूसरा जो गाना है, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे। रफी साहब, अनदर ग्रेट एग्जांपल। मनोज जी, अब ये गाना हमको याद है, लेकिन मुझे ना इसकी फिल्म का तो कुछ पता है ना म्यूजिक डायरेक्टर कुछ पता है, लेकिन गाना अमर है जी। वही तो कौन सी फिल्म थी? बिंदिया फिल्म, खाली नाम आ रहा है बिंदिया, हाँ। अब ये 2 बार बनी थी, कौन सी बिंदिया थी पता नहीं। नहीं, और फिर हम so when we come to know about these songs, that's when we try to explore these songs more and we try to find out who the music director was and all those okay, मनोज जी, मिला थोड़ा सा इकबाल कुरैशी का संगीत था apparently, हाँ, और राजेंद्र कृष्ण के गीत का गीत देखिए क्या बात है, वाह। बलराज सानी साहब थे स्क्रीन पे, हाँ हाँ हाँ, ये सब हिंदी गीतमाला.net का को थैंक यू ये कमाल है जी जी, जबरदस्त कलेक्शन, बिल्कुल जी 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 कंटिन्यू या
और एक जो मराठी बहुत ही पॉपुलर नाट्य संगीत जो मराठी का है वो तो एकदम प्योर तिलंग पर ही आधारित है। मराठी में जो नाट्य संगीत नॉर्मली जो होते हैं वो काफ़ी कुछ रागों पर आधारित होते हैं, राग से बहुत कम हटते हैं। तो ये इसका एक उदाहरण है। सो तारिणी नववसन धारिणी गम पनि सारे सा प सा नी प ग म ग तारिणी नववसन धारिणी वात्सल्य हृदय धरुणी वात्सल्य हृदय धरुणी करिसि जया स्वजनी तारिणी नववसन धारिणी तारिणी नववसन धारिणी तारिणी नववसन धारिणी। माइंड ब्लोइंग एनर्जी, व्हाट एनर्जी, माय गॉड। जी, किसने गाया था ओरिजिनली ये मनोज जी? ये मैंने जब इसको पहली बार सुना था तो माणिक वर्मा जी जो हैं, मैंने उनसे सुना था एक्चुअली जी। बट फिर बाद में कई सारे सिंगर्स ने गाया। आई एम नॉट वेरी श्योर कि हु sang इट ओरिजिनली पहली बार। आई फॉरगेट द नेम ऑफ द नाटक एक्चुअली। या अगर आई एम श्योर कि अगर ये प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं हमारे मराठी दोस्त खास करके उनको शायद पता हो। हाँ, मेरे ख्याल से संगीत पटवर्धन नाटक का नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। संगीत पटवर्धन। तो यानी कि ये मराठी नाटक ऐसे थे कि जिनके पीछे हमेशा संगीत जुड़ता था, क्योंकि उनमें पूरा संगीत था। तो जैसे नाटक का नाम तो पटवर्धन है मगर उसको संगीत पटवर्धन के नाम से जानते हैं। जैसे संगीत मानापमान, संगीत स्वयंवर, संगीत सौभद्र। तो इस तरह के जो प्रसिद्ध जो नाटक हैं उन सबके पीछे संगीत ये शब्द जुड़ जाता है, बिकॉज दे आर ऑल म्यूजिकल्स बेसिकली, राइट? सो या सो अमेजिंग। आप बहुत ही जबरदस्त एनर्जी थी इसमें। जी जी। इफ यू नो एनी स्टैंड आल्सो इट विल बी ग्रेट। हाँ, मेरे ख्याल से या तळमळे अवघी प्रजा, तळमळे अवघी प्रजा, उत्सवी मग्न राजा, उत्सवी मग्न राजा, साधितो शकुनी काजा, साधितो शकुनी काजा, वैरी भर भरिति स्वैर गति रमति, प्रजाजन फिरति रानी, तारिणी नववसन धारिणी। तो ये बेसिकली कौरव पांडवों के जमाने का उसमें वर्णन है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि जो युधिष्ठिर जो थे वो मगन थे खेलने में, जुआ खेलने में, और उसमें शकुनी ने अपना जो है वो काम साध लिया और फिर सब तरफ हलचल मच गई और जो प्रजाजन जो हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे इसमें भाव है। वर्ड आया था। हाँ जी जी, स्वेर वर्ड आया था। स्वेर मींस वही, हाँ, स्वैर गति, यानी कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल घूम रहे हैं। हाँ हाँ, प्रजाजन फिरती रानी, यानी कि वो जैसे जंगल में घूम रहे हैं सब, क्योंकि शकुनी जी ने जो है वो अपना काम साध लिया, क्योंकि धर्मराज जो थे युधिष्ठिर वो मगन थे खेलने में। हाँ, तो इस तरह का इसमें भाव है। जी जी जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। यस, वंडरफुल जी। तो ये this was all about Rag Tilang. Tilang, yes. Yeah. So this is episode number 41. My goodness. Well, I know that we have definitely 3-4 more obvious rags that we have not included yet. Probably we might start doing them now. Right. In case any of the listeners have any other choice of rags, there was one rag that we definitely need to do once again. So we will probably do that episode one more time. I think there was some sound issue with that rag. तो उसके जैसे उसको फिर से करना है। और मगर और अगर listeners, if you have any other choice of rags in your mind, please do let us know and we will try our best to bring you that rag. And so let's see what we have in store next week.
We ourselves don't know as of now. या 2-3 बड़े-बड़े बाकी हैं बहुत हाँ बिल्कुल. So I might probably try to surprise Pankaj ji and take some very odd name, and then he might start digging into his resources. So that way, you know, so you never know. Theoretical research तो कर ही सकते हैं हम भी. बिल्कुल. इंटरनेट के माध्यम से. Exactly, and that's the whole point that we have you. ताकि you know, it's a perfect combination that we have. So, but listeners, as always, please do post your comments, your feedback, and your thoughts. And until next week, stay safe, listen to good music, and stay absolutely healthy and safe. So, Pankaj ji, to you and all the listeners, namaskar.